हेलो, मैं डॉक्टर यूपी श्रीवास्तव, प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट राघवेंद्र राव पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज बिलासपुर। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको लिविंग इंटीग्रल के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेम के पेपर 2 का। इसके पहले आपने मेजरेबल फंक्शन, मेजरेबल सेट्स आदि सब देखा होगा। इसमें कुछ स्लाइड्स के माध्यम से इसको मैं बताने जा रहा हूँ। लिविंग इंटीग्रल की मेन डेफिनेशन में आने के पहले मैं आपको थोड़ा सा रीमन इंटीग्रल के बारे में बता दूं। ये आप भली भांति जानते हो कि रीमन इंटीग्रल क्या होता है और बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में बहुत यूजफुल भी है रीमन इंटीग्रल। पर यह भी देखा गया है कि इसकी कुछ लिमिटेशन होने के कारण मैथमेटिक्स और फिजिक्स की कई ब्रांचेस में ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा इन 2 स्लाइड्स में जो है वो मैं आप डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ कि for solving many mathematical problems, theory of Riemann integration is very useful, but it does not meet the needs of number of important branches of mathematics and physics. This theory has some defects. Riemann integration is defined for bounded function only. now ध्यान रखिएगा, Riemann integration केवल bounded function पे defined है. Riemann integral of a function is defined on a closed interval and cannot be defined on an arbitrary set. Closed interval में define होता है, arbitrary set में इसको define नहीं किया जा सकता. Riemann integrability depends upon the continuity of the function. Continuity पर depend करती है. Although the functions which are discontinuous and yet integrable, but these functions are continuous almost everywhere. ऐसे functions भी होते हैं जो कि discontinuous हो पर Riemann integral हो, पर वो भी functions क्या होते हैं? Continuous almost everywhere होते हैं. Again, given a sequence of Riemann integral function converging to some function in a domain, the limit of sequence of integrated functions may not be the Riemann integral of the limit function. यानी यदि अपन रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस के सीक्वेंस जो कि किसी डोमेन में किसी फंक्शन पे कन्वर्ज हो रही है, जिसको अपन लिमिट फंक्शन कहते हैं, तो यदि अपन इंटीग्रेटेड फंक्शन के सीक्वेंस लें तो इसकी जो लिमिट होगी वो लिमिट फंक्शन का रीमन इंटीग्रल हो ये आवश्यक नहीं है. इवन लिमिट फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल हो ये भी जरूरी नहीं है. ये मेजर ड्रॉबैक है. दिस इज ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रीमन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन. Even relatively simple functions are not integrable in the sense of Riemann integration. कई बार simple functions भी Riemann integration के sense में integrable नहीं होते. इन सब defects को दूर करते हुए H. Levig ने introduce किया concept of an integral. H. Levig introduced the concept of an integral known as Levig integral, based on measure theory that generalizes the Riemann integral. This theory takes care of both bounded and unbounded functions and allows their domain to be more general sets and thereby enlarges the class of functions for which the Levig integral is defined. Levig ने जिस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट दिया वो जनरलाइज रूप था इंटीग्रेशन का, मेजर थ्योरी पे बेस्ड था और मेजर थ्योरी जो है वो जनरलाइज करती है रीमन इंटीग्रेशन को. साथ ही इन्होंने बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों फंक्शंस को कंसीडर किया और ज्यादा जनरल सेट्स को डोमेन के रूप में लिया. तो इसलिए ये जनरलाइज रूप है इंटीग्रल का और ज्यादा उपयोगी है रीमन इंटीग्रल की अपेक्षा. इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में रीमन इंटीग्रल, जो कि वैसे आप जानते हो, फिर भी थोड़ा सा याद दिलाने के लिए इसकी परिभाषा को बताया गया है कि यदि let f be a function defined and bounded on AB and P be a partition of AB, P is equal to A is equal to x0 is less than x1 is less than x2 is less than dash dash is less than xn is equal to B, and then we have UPF means upper Riemann sum is equal to summation I from 1 to n xi minus 1 xi minus xi minus 1 capital Mi, and LPF, it is called lower Riemann sum. It is defined as summation I from 1 to n xi minus 1 small mi. ये सब आप जानते हैं, where capital Mi and small mi are respectively supremum and infimum of x in सब interval xi minus 1 xi. ये आप भली बातें जानते हो अपर रीमन सम और लोअर रीमन सम को. और इसके आगे अपर रीमन इंटीग्रल. नाउ अपर रीमन इंटीग्रल ऑफ f over ab is defined by, it is denoted here as r integral a to minus b f x dx, and it is defined as infimum of sets of UPF, sums UPF, where P is a partition of
AB, and lower Riemann integral of f over AB, which is denoted here by R integral minus a to b fx dx, is defined as supremum of set of sums LPF, where P is any partition of AB. And we know that if these two integrals, means upper Riemann integral and lower Riemann integral, are equal, the function is called Riemann integral, and their common value is called Riemann integral of the function f over AB, and it is denoted by R into integral a to b fx dx. अब यहाँ पे रीमन इंटीग्रल को थोड़े से डिफरेंट एंगल से स्टेप फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया. लेट साई बी स्टेप फंक्शन. आप जानते हो स्टेप फंक्शन क्या होता है. लेट साई बी स्टेप फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b. Then psi x is equal to ci, where x belonging to subinterval xi minus 1 xi, and where I is equal to 1, 2, 3 dash dash n, and where a is equal to x0 is less than x1 is less than x2 is less than dash dash is less than xn is equal to b is partition of ab. So step function के definition से when x belonging to ith subinterval xi minus 1 xi, then psi x will be equal to ci. Similarly, when x belonging to first subinterval x0 x1, then psi x will be equal to c1. When x belonging to second subinterval, then psi x is equal to c2, and so on. This is from definition of step function. Then we are taking psi a step function defined on AB. Let us define the elementary integral of psi over AB. Elementary integral of psi over AB, इसको दर्शाया जाता है integral a to b psi x dx से, and it is equal to, it is defined as summation I from 1 to n ci into xi minus 1. इससे दर्शाया जाता है. और ये इस तरह से जो आप डिफाइन करें एलिमेंट्री इंटीग्रल को, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो समेशन है, साई का रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा समान प्राप्त होती है और फाइनाइट प्राप्त होती है. नाउ अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल आर डिफाइंड एज फॉलोज. आर इंटीग्रल अपर रीमन इंटीग्रल, इसको दर्शाया जाता है यहाँ पे आर इंटीग्रल ए टू माइनस बी एफ एक्स डी एक्स से. इसको डिफाइन किया जा रहा है कि आर इंटीग्रल ए टू माइनस बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ इंटीग्रल ए टू बी साई एक्स डी एक्स फॉर ऑल स्टेप फंक्शन साई ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ. यानी अपर रीमन इंटीग्रल इज डिफाइंड एज infimum of integral a to b psi x dx, where psi x is step functions greater than or equal to f defined over interval ab. Similarly, lower Riemann integral r integral minus a to b fx dx is defined as supremum of integral a to b psi x dx, where psi are step functions less than or equal to f defined over interval ab. तो इस तरह से एक अलग डेफिनेशन दी गई है अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल के स्टेप फंक्शन के रूप में, और ये दोनों यदि बराबर हो तो फंक्शन रीमन इंटीग्रल कहलाता है ab में. इसके बाद लिविंग इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन. लिविंग इंटीग्रल दिया है यहाँ पे सिंपल फंक्शन को लेके लिविंग इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन को डिफाइन किया है. सिंपल फंक्शन ज्यादा जनरलाइज और उपयोगी रूप है स्टेप फंक्शन की अपेक्षा. तो लेट फाई बी ए सिंपल मेजरेबल फंक्शन. Phi is simple function and measurable function with its canonical representation given by phi x is equal to summation I from 1 to n ai chi ai x, where the sets ai is equal to set of element x such that phi x is equal to small ai are disjoint and measurable, and the real numbers ai, small ai, I is equal to 1, 2 dash dash n are distinct and non-zero. Assume that phi x vanishes, that is phi x is equal to 0 outside a set of finite measure. इसको फिर से समझ लो. phi सिंपल फंक्शन है और इसको इसका कैनोनिकल फॉर्म लिखा गया है phi x is equal to summation I from 1 to n small ai chi कैपिटल ai x. यहाँ पे chi कैपिटल ai x क्या है? सेट ai का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है. आप जानते हो कि when x belonging to ai chi aix is equal to 1 and when x is not belonging to ai chi aix is equal to 0. So where
इस तरह से ए आईज को कहा गया है कि ये उन एलिमेंट्स एक्स के सेट है जिनके लिए फाई एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए आई है एंड आर डिसजॉइंट एंड मेजरेबल। साथ ही डिसजॉइंट और मेजरेबल हैं और रियल नंबर्स ए आई जो हैं वो डिस्टिंक्ट और नॉन जीरो हैं। साथ ही कह रहे हैं अपन फाई एक्स इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। ध्यान रखना सेट्स ए आईज आर मेजरेबल सेट्स। यदि अपन सेट ए आई को लें तो यदि x बिलोंगिंग टू ए आई हो तो क्या स्थिति होगी? x बिलोंगिंग टू ए आई होगा तो काई ए आई एक्स जो है वो 1 के बराबर होगा और इस स्थिति में ए आई में फाई एक्स किसके बराबर होगा? स्मॉल ए आई के बराबर होगा। यदि x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए आई हो तब क्या होगा? तो काई ए आई एक्स जो है जीरो हो जाएगा और इस स्थिति में फाई एक्स जो है जीरो होगा, यानी मेजरेबल सेट ए आई के बाहर फाई एक्स जो है वो वैनिश हो रहा है या जीरो के बराबर हो रहा है। इस तरह से हमने इस एजम्पशन को माना है। ये तो अपन ने एलिमेंट्री फंक्शन लिया। अब इस एलिमेंट्री फंक्शन फाई का जो एलिमेंट्री इंटीग्रल है, देन द एलिमेंट्री इंटीग्रल ऑफ फाई इज डिफाइंड बाय इंटीग्रल फाई एक्स डीएक्स, इट इज इक्वल टू समेशन ए आई मेजर ऑफ सेट कैपिटल ए आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। इससे डिफाइन किया जाता है एलिमेंट्री इंटीग्रल को एंड समटाइम्स इट इज सिंपली डिनोटेड एज इंटीग्रल फाई। इसके बाद कहता है कि E is a measurable set, then the integral of phi over E is defined by integral phi dot chi E। E मेजरेबल सेट है तो फाई का इंटीग्रल E पर ये बराबर होता है इंटीग्रल फाई डॉट काई ई के। भी इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, द एलिमेंट्री इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल फंक्शन। एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट भरा आपको ध्यान में रखना है। लेट फाई एंड साई बी सिंपल फंक्शंस वैनिश आउटसाइड द सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आगे यूज हो सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ए फाई प्लस बी साई is equal to a into integral of phi plus b into integral of psi where for all reals a and b. And second, if phi is greater than or equal to psi almost everywhere, then integral of phi is greater than or equal to integral of psi। यहाँ पे इंटीग्रल्स एलिमेंट्री इंटीग्रल्स लिए गए हैं, अपर एंड लोअर लिविंग इंटीग्रल्स। अब यहाँ पे लिविंग इंटीग्रल की डेफिनेशन पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें डिफाइन किया गया अपर एंड लोअर लिविंग इंटीग्रल को। लेट f be a function of E into R, be bounded function and E be a measurable set। E measurable set with measure of E is less than infinity, यानी measure of E जो है finite है। Let us consider the numbers infimum when psi is greater than or equal to f of integral psi over E and supremum when phi is less than or equal to f of integral phi over E, where psi and phi range over the set of all simple functions defined on the set E। ध्यान रखिए हम कंसीडर कर रहे हैं दो नंबर्स। पहला है इन्फिमम psi when psi is greater than or equal to f of integral psi over f। इंटीग्रल psi over E का इन्फिमम लिया गया है when psi is greater than or equal to f। Psi's are simple functions defined on set E। दूसरा नंबर है सुप्रीमम when phi is less than or equal to f of integral phi over E। माने इंटीग्रल phi over E का सुप्रीमम लिया गया है जबकि phi लेस देन और इक्वल टू f है और phi वे सिंपल फंक्शंस हैं जो कि सेट E में डिफाइंड है और जिनकी वैल्यू f से छोटी है उसके बराबर है। इन दो राशियों पे अपन विचार करते हैं। आगे ये कहता है कि these two numbers do exist, दोनों एग्जिस्ट करते हैं और रिस्पेक्टिवली कॉल्ड, यानी जो इन्फिमम psi greater than or equal to f इंटीग्रल psi over E ये कहलाता है अपर लिविंग इंटीग्रल ऑफ f over E और सुप्रीमम when phi is less than or equal to f of integral phi over E ये कहलाता है लोअर लिविंग इंटीग्रल ऑफ f over E।
और इनको क्रमशः दर्शाया जाता है L इंटीग्रल e टू माइनस एफ एक्स डी एक्स और L इंटीग्रल माइनस e टू एफ एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स से। इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है और आगे डिफाइन किया गया है कि जब ये यानी लोअर लिविंग इंटीग्रल और अपर लिविंग इंटीग्रल बराबर होते हैं तो फंक्शन f जो है e पर लिविंग इंटीग्रेबल कहलाता है। उनकी कॉमन वैल्यू जो है वो लिविंग इंटीग्रल वो दर्शाई जाती है L इंटीग्रल e टू एफ एक्स डी एक्स और ये लिविंग इंटीग्रल ऑफ f ओवर e कहलाती है। इसके बाद एक थ्योरम है विदाउट प्रूफ, इस रिजल्ट को ध्यान रखिए कि लेट e f function f of e into r be a simple function, then Lebesgue integral of f over e is equal to Lebesgue integral of f over lower Lebesgue integral of f over e is equal to upper Lebesgue integral of f over e. यदि f सिंपल फंक्शन है e पर तो ये दोनों तरह के इंटीग्रल बराबर होते हैं। उसी को रिमार्क में कहा गया है कि every simple function f is Lebesgue integrable and its Lebesgue integral is nothing but the same as the element integral of f। यदि कोई सिंपल फंक्शन है तो वो Lebesgue इंटीग्रेबल होगा और इसका Lebesgue इंटीग्रल जो है वो इसके एलिमेंट इंटीग्रल के जैसा ही होगा या बराबर होगा। इसके बाद एक और थ्योरम है विदाउट प्रूफ, उसके स्टेटमेंट भर को दे रहा हूँ। A bounded function f defined on a measurable set E of finite measure is Lebesgue integrable if and only if f is measurable। सिंपली आपको ये याद रखना है कि f यदि एक मेजरेबल फंक्शन है तो ये Lebesgue इंटीग्रेबल होगा और स्मॉल f यदि Lebesgue इंटीग्रेबल है तो ये एक मेजरेबल फंक्शन होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है याद रखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में अपन देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रीमन इंटीग्रल एंड Lebesgue इंटीग्रल एक थ्योरम के रूप में जिसका प्रूफ भी अपन ने दिया है। ये थ्योरम कहता है कि लेट स्मॉल f बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड और इंटरवल a b and if f is Riemann integrable over AB, then it is Lebesgue integrable, and Riemann integral of f over AB is equal to Lebesgue integral of f over AB। यानी यदि बाउंडेड फंक्शन है जो कि a b में डिफाइंड है, ये रीमन इंटीग्रेबल है तो ये Lebesgue इंटीग्रेबल भी होगा और साथ ही इसका रीमन इंटीग्रल और Lebesgue इंटीग्रल ये दोनों f में बराबर इंटरवल AB में बराबर होंगे। अब इसका प्रूफ में सबसे पहले जो रीमन इंटीग्रल की परिभाषा अपन ने स्टेप फंक्शन के रूप में दी थी उसका यूज किया गया है। सिंस f is Riemann integrable over AB, we have infimum psi 1 greater than or equal to f integral a to b psi 1 x dx is equal to supremum phi 1 is less than or equal to f integral a to b phi 1 x dx is equal to r integral a to b f x dx। आप जानते हो कि infimum psi 1 greater than or equal to f integral a to b psi 1 x dx ये अपर रीमन इंटीग्रल है f का ab में और सुप्रीमम phi 1 लेस देन और इक्वल टू f इंटीग्रल a to b phi 1 x dx ये लोअर रीमन इंटीग्रल है f का ab में। ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर होंगे फंक्शन के रीमन इंटीग्रल r इंटीग्रल a to b f x dx, क्योंकि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है ab में जहां वेयर phi 1 एंड psi 1 ये दोनों स्टेप और ऑल स्टेप फंक्शंस हैं जो कि डिफाइंड है ए बी में। सुप्रीमम इन्फिमम ये उन ऑल स्टेप फंक्शंस पे लिए गए हैं जो कि ए बी में डिफाइंड है। इसके बाद हम जानते हैं कि हर स्टेप फंक्शन क्या होता है, सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन जनरलाइज रूप है स्टेप फंक्शन का और साथ ही इस बात का हमने यूज किया है कि जब सुप्रीमम जो है जनरलाइज क्लास में वाइडर क्लास में लिया जाता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और इन्फिमम जो है जब वाइडर क्लास में लिया जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस बात का उपयोग करते हुए ये दो इनइक्वालिटीज प्राप्त की गई है। पहली है कि सुप्रीमम when phi 1 is less than or equal to f of integral a to b phi 1 x dx is less than or equal to supremum of phi less than or equal to f of integral a to b phi x dx। और दूसरी इनइक्वालिटी है infimum when psi 1 is greater than or equal to f of integral a to b psi 1 x dx
is greater than or equal to infimum when psi is greater than or equal to f of integral a to b psi x dx. यहाँ पे phi और psi सिंपल फंक्शंस हैं जो कि डिफाइंड हैं ए बी में, यानी सुप्रीमम एंड इन्फिमम are taken over all simple functions phi and psi defined on interval AB में, और सिंपल फंक्शन की क्लास जो है वो स्टेप फंक्शन से वाइडर रहती है, इसलिए ये दोनों इक्वलिटीज अपने को प्राप्त हुई है। इसके अलावा ये तीन इनइक्वालिटी मिल गई, इन तीनों का यदि अपन यूज करें तो आप देखो कि आसानी से मैं पहली वाली इनइक्वालिटी पे आ रहा हूं। इसमें देखो कि सुप्रीमम व्हेन phi 1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ इंटीग्रल a टू b phi 1x dx बराबर क्या है, r इंटीग्रल a टू b fx dx। यदि इसको मिलाया जाए इस पहली इनइक्वालिटी से इस पेज की, तो अपने को क्या मिल जाएगा कि r इंटीग्रल a टू b fx dx is less than or equal to supremum is less than or equal to supremum phi less than or equal to f integral a to b phi x dx। ठीक है, पहली इनइक्वालिटी और दूसरी इनइक्वालिटी को मिला के अपन ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि सुप्रीमम व्हेन phi is less than or equal to f of integral a to b phi x dx is less than or equal to infimum when psi is greater than or equal to f of integral a to b psi x dx। हम इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रीमम लिया जा रहा है when phi is less than or equal to f, और infimum लिया जा रहा है when psi is greater than or equal to f, इसलिए इस infimum की वैल्यू सुप्रीमम से बड़ी या उसके बराबर होगी। और फिर यदि अपन ऊपर की इनइक्वालिटी 3 का उपयोग करें तीसरी, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इट इज लेस देन और इक्वल टू psi when infimum when psi 1 is greater than or equal to f of integral a to b psi 1x dx। और फिर यदि अपन पहली इनइक्वालिटी पे आ जाए तो हमको मिल जाएगा बराबर r इंटीग्रल a टू b fx dx। यानी इस जो इनइक्वालिटी अपने को प्राप्त हो रही है इसमें दोनों साइड r इंटीग्रल a टू b fx dx हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको बराबर, इसको लिख सकते हैं सुप्रीमम when phi is less than or equal to f of integral a to b phi x dx is equal to infimum when psi is greater than or equal to f of integral a to b psi x dx is equal to r integral a to b f x dx। इनइक्वालिटी इक्वालिटी में परिवर्तित हो जाएगी, अपने को ये मिल जाएगा क्योंकि दोनों साइड r इंटीग्रल a to b phi x dx आ रहा है। और यदि इसमें पहले दोनों इंटीग्रल्स को देखो तो सुप्रीमम phi is less than or equal to f of integral a to b phi x dx is equal to infimum psi greater than or equal to f integral a to b psi x dx। ये किसके बराबर है, ये लिविंग इंटीग्रल ऑफ fx ओवर ab के बराबर है, और ये बराबर किसके है, रीमन इंटीग्रल ऑफ fx ओवर ab के। दिस प्रूव्स दिस इंपॉर्टेंट रियलिटी। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग इंटीग्रल फॉर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जिसको अपन प्रूव करेंगे। थ्योरम कहता है कि लेट f and g be bounded measurable function defined on a set E of finite measure। f और g दोनों बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है जो कि डिफाइंड है मेजरेबल सेट E पे जिसका कि मेजर फाइनाइट है। तो ये नीचे वाली सब रिजल्ट जो है आप लोग को प्रूफ करने हैं, जिसमें पहला है इंटीग्रल ऑफ लिविंग इंटीग्रल ऑफ f over E is equal to a into integral of f over E for all real numbers। A integral of f plus g over E is equal to integral of f over E plus integral of g over E। C if f is equal to g almost everywhere, then integral of f over E is equal to integral of g over E। And D if f is less than or equal to g almost everywhere, then integral of f over E is less than or equal to integral of g over E। Hence, mod of integral of f over E is less than or equal to mod of integral f over E, integral of mod of f over E, and E, if alpha is less than or equal to fx is less than or equal to beta, then alpha
into measure of E is less than or equal to integral of f over E is less than or equal to beta into measure of E. और आखिरी if E1 and E2 are disjoint measurables subsets of E, then integral of f over E1 union E2 is equal to integral of f over E plus integral of f over E2. Remark इसमें लिखा है कि all the integrals used in the above properties are living integrals. Since we are dealing with living integrals, only therefore we are simply using integral E for L integral E. जितने भी इंटीग्रल्स हैं सब क्या लिविंग इंटीग्रल हैं और अपन लिखने की सुविधा के लिए और चूंकि अपन लिविंग इंटीग्रल्स पे डील कर रहे हैं हम L इंटीग्रल E को लिख देते हैं सिंपली इंटीग्रल ओवर E के जैसा। अब इसके प्रूफ, पहला वाला ए, ये देखो ए में अपने को प्रूफ करना है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज इक्वल टू ए इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई फॉर ऑल रियल नंबर्स ए, सभी रियल नंबर्स ए के लिए। इसको प्रूफ करने के लिए आप देखिए कि यदि ए इज इक्वल टू 0 हो, दोनों साइड क्या हो जाएगा 0, हाँ, द रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब साई भी ए सिंपल फंक्शन, ए साई इज आल्सो ए सिंपल फंक्शन, यदि साई सिंपल फंक्शन है तो ए साई भी सिंपल फंक्शन होगा। सो फॉर ए ग्रेटर देन 0, अब देखिए इंटीग्रल ऑफ एफ over E, living integral of f over E is equal to, from definition, infimum a psi is greater than or equal to f of integral a psi over E, और इसको अपन बराबर क्या लिख सकते हैं, a into infimum psi is greater than or equal to f of integral psi over E, और ये जो है बराबर लिखा सकता है a into इंटीग्रल ऑफ f over E लिविंग इंटीग्रल की डेफिनेशन से। अब जब a लेस देन 0 होगा तब क्या स्थिति बनेगी, देखिए लिविंग इंटीग्रल ऑफ f over E इज इक्वल टू इनफिमम a psi is greater than af ऑफ इंटीग्रल a psi over E। ये तो अपन हमने लिविंग इंटीग्रल की डेफिनेशन का उपयोग किया। a अपन कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना a निगेटिव है, तो स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी मिलेगा और इनफिमम सुप्रीमम बदल जाएगा। तो a इंटू सुप्रीमम साई इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ इंटीग्रल साई ओवर e, सिंपली क्योंकि कारण a निगेटिव है, और ये बराबर होगा लिविंग इंटीग्रल की डेफिनेशन से a इंटू इंटीग्रल f ओवर e के। दिस प्रूव्स द फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड में एक्चुअली अपने को देखना है इंटीग्रल ऑफ f प्लस g ओवर e इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ओवर e प्लस इंटीग्रल ऑफ g ओवर e। अब इसके प्रूफ के लिए हम दो सिंपल फंक्शंस लेते हैं, psi1 and psi2 be simple functions such that psi1 is greater than or equal to f and psi2 is greater than or equal to g. Then psi1 plus psi2 will be a simple function, एक simple function होगा such that psi1 plus psi2 is greater than or equal to f plus g होगा, या इसको अपन लिख सकते हैं f plus g is less than or equal to psi1 plus psi2। अब यदि अपन यहाँ पे ले देखें तो इंटीग्रल ऑफ f plus g over e ये लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ psi1 plus psi2 ओवर e होगा, और ये बराबर होगा जो अपन ने एलिमेंट्री इंटीग्रल के लिए देखा है, ये बराबर होगा psi1 इंटीग्रल ऑफ psi1 ओवर e प्लस इंटीग्रल ऑफ psi2 ओवर e, एलिमेंट्री इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट। और इसलिए हम क्या कह सकते हैं, therefore we can say that integral of f plus g over e is less than or equal to infimum when psi1 is greater than or equal to f of integral psi1 over e plus infimum when psi2 is greater than or equal to e of integral psi2 over e। इसके बराबर हो जाएगा, यदि अपन infimum ले लें तो ये स्थिति बन जाएगी, और ये बराबर क्या होगा, लिविंग इंटीग्रल ऑफ f ओवर e प्लस लिविंग इंटीग्रल ऑफ g ओवर e के। ये एक साइड से प्रूव करता है, यानी लिविंग इंटीग्रल ऑफ f प्लस g ओवर e is equal to living integral of is less than or equal to integral living integral of f over e plus living integral of g over e के। सिमिलरली यदि अपन
सिंपल फंक्शन ले रहे हैं phi1 and phi2 such that phi1 is less than or equal to f और phi2 is less than or equal to g, then अपने को मिलेगा phi1 plus phi2 is less than or equal to f plus g, that is f plus g is greater than or equal to phi1 plus phi2। और बिल्कुल वैसा ही जैसा कि इसके पहले वाली इनइक्वालिटी प्राप्त की, हम इनइक्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं इंटीग्रल f plus g over e is equal to लिमिट इंटीग्रल is greater than or equal to इंटीग्रल ऑफ f over e प्लस इंटीग्रल ऑफ g over e। इसको 2 दे देते हैं और 1 और 2 की सहायता से अपने को रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो प्राप्त होता है। तीसरे में देखिए सी एक्चुअली सी में क्या है कि इफ f is equal to g almost everywhere then integral of f over e is equal to लिमिट इंटीग्रल ऑफ g over e। f is equal to g almost everywhere यहाँ पे अपने को मानना है। अब यहाँ पे देखो हमको अपना थ्योरम प्रूफ करने के लिए, अपना रिजल्ट प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव द रिजल्ट इज सफिशिएंट टू शो दैट इंटीग्रल ऑफ f माइनस g ओवर e इज इक्वल टू 0, क्योंकि दर्शाएगा कि इंटीग्रल ऑफ f ओवर e इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ g ओवर e। अब अपने को दिया क्या गया है कि f इज इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नाउ f इज इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर implies that f minus g is equal to 0 almost everywhere. If psi be a simple function such that psi is greater than or equal to f minus g, तो अपने को क्या मिल जाएगा, then psi is greater than or equal to 0 almost everywhere। And when psi is greater than or equal to almost everywhere, तो अपन ने एलिमेंट्री इंटीग्रल के लिए जो एक रिजल्ट देखा था उसको यूज करते हुए, इसी लेक्चर में ऊपर दिया गया है रिजल्ट, उसको यूज करते हुए अपने को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट इंटीग्रल ऑफ psi ओवर e is greater than or equal to 0। और इससे अपन क्या लिख सकते हैं, इसलिए इन्फिमम when psi is greater than or equal to f minus g of integral psi over e is greater than or equal to 0। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये बराबर है लिमिट इंटीग्रल ऑफ f minus g over e is greater than or equal to 0। और सिमिलरली हम क्या शो कर सकते हैं कि लिमिट इंटीग्रल ऑफ f minus g over e is less than or equal to 0। और इन दोनों इक्वालिटी को मिला के देखें तो अपने को जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो प्राप्त होता है। जो हो गया सी। इसके बाद डी में भी एक्चुअली यदि अपन पीछे देखें तो डी में अपने को दर्शाना है, दो चीजें हैं, एक तो इफ एफ इज लेस देन आर इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर देन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई। और दूसरी चीज अपने को दर्शाना है कि मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ ओवर ई। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई, इसको प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसका प्रूफ डी का देखने के लिए हम चूंकि f इज लेस देन आर इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, इसका मतलब होगा f माइनस जी इज लेस देन आर इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और यदि if psi be a simple function such that psi is less than or equal to f minus g, तो अपने को क्या मिल जाएगा, psi is less than or equal to 0 almost everywhere। और इसका मतलब एलिमेंट्री इंटीग्रल के लिए जो प्रॉपर्टी है उससे मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ psi ओवर e इज लेस देन और इक्वल टू 0। और इसका मतलब होगा कि सुप्रीमम psi when less than psi is less than or equal to f minus g of integral psi over e is less than or equal to 0। और ये अपने को देगा लिमिट इंटीग्रल ऑफ f minus g over e is less than or equal to 0, that is लिमिट इंटीग्रल ऑफ f over e is less than or equal to लिमिट इंटीग्रल ऑफ g over e। और इसी में फर्दर f is less than or equal to mod f almost everywhere और माइनस f is less than or equal to mod f almost everywhere हम जानते हैं। इसका मतलब होगा कि इंटीग्रल ऑफ f ओवर e
is less than or equal to integral of mod f over e, and integral of minus integral of f over e is equal to integral of minus f over e is less than or equal to integral of mod f over e हो जाएगा। इन दोनों को मिला कर लिखें तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ इंटीग्रल f over e and integral and minus integral f over e is less than or equal to integral of mod f over e होगा। और इसका मतलब होगा कि mod of integral f is less than or equal to integral of mod f over e के। नेक्स्ट है रिजल्ट e, जिसको प्रूफ करने के लिए अपने को दिया गया है अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। लेट साई बी ए सिंपल फंक्शन सच दैट अल्फा इज लेस देन इक्वल टू साई। यदि अपन ऐसा ले लें तो अपने को क्या मिल जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ अल्फा एलिमेंट इंटीग्रल ऑफ अल्फा ओवर ई इज लेस देन और इक्वल टू एलिमेंट इंटीग्रल ऑफ साई ओवर ई। इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर ई इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साई ओवर ई। और इसको आप लिख सकते हैं, आप जानते हो कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर ई इज इक्वल टू एम ई। तो ये मिल जाएगा अल्फा एम ई इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिमम साई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ इंटीग्रल साई ओवर ई। और ये किसके बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर लिविंग इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई के। इसको इनइक्वालिटी 1 दे दो। और सिमिलरली यदि अपन फाई एक सिंपल फंक्शन ले, फाई टू बी ए सिंपल फंक्शन सच दैट फाई इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, तो हमको क्या मिल जाएगा कि लिविंग इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन और इक्वल टू बीटा इनटू एम ई। और इन दोनों को मिला दें यदि 1 और 2 को, तो हमको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। और आखिरी चीज जो है उसको प्रूफ करने के लिए रिजल्ट एफ। आप जानते हो कि एफ में अपने को क्या प्रूफ करना था, एफ में अपने को प्रूफ करना था कि if e1 and e2 are disjoint measurable subset, then integral of f over e1 union e2 is equal to integral of f over e1 plus integral of f over e2। ये बहुत ही आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि सिंस अपने पास सिंस e1 and e2 are disjoint measurable sets of finite measure, ये अपने को दिया गया है। Characteristic function chi e1 union e2 of the union e1 union e2 ये measurable होगा, is measurable and is of finite measure, and also chi e1 union e2 is equal to chi e1 plus chi e2। अब यदि हम मान लें कि let psi be a simple function such that chi is greater than or equal to f on both e1 and e2, सिंपल फंक्शन इस तरह से chi greater than or equal to f e1 e2 दोनों पे है, इसका मतलब क्या होगा then chi is greater than or equal to f on e1 union e2। इस पे भी chi का मान f से बड़ा है, उसके बराबर होगा e1 union e2 पे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं therefore integral of f over e1 union e2 is equal to infimum chi is greater than or equal to f of integral integral of f over e1 union e2 is equal to infimum psi greater than or equal to f of integral psi over e1 union e2 is equal to infimum psi greater than or equal to f of integral psi dot chi e1 union e2। ठीक है, इसको लिखा सकता है एलिमेंट्री इंटीग्रल के गुण से, क्योंकि इंटीग्रल psi ओवर e इज इक्वल टू इंटीग्रल psi डॉट chi e के, इसे लिख सकते हैं। और ये बराबर क्या होगा इन्फिमम psi ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ इंटीग्रल psi और इनटू chi e1 प्लस chi e2 के। chi e1 प्लस chi e2 किसके बराबर है chi e1 यूनियन e2 के। और ये बराबर लिखा था इन्फिमम when psi is greater than or equal to f of integral psi into chi e1 plus infimum when psi is greater than or equal to f of integral psi into chi e2 के। और ये बराबर होगा लिविंग इंटीग्रल ऑफ f over e1 plus living integral of f over e2 के। दिस प्रूव्स द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है।
नमस्कार।